Hello friends, how are you? All fine? In previous classes, chapter number 5, principle of inheritance and variation. There is the last topic is remaining only this chapter. Last topic, that is Mendelian disorders and chromosomal disorders. Right? So friends, in previous classes, you all are completely studied about the Mendelian genetics, different law, right? Then after the chromosomal theory of inheritance, sex determination, types of mutation, or in previous last class, we have to study about there is the pedigree analysis, right? I think आप लोगों ने वहाँ पर complete किया होगा. How to analyze the genetic disorders by family tree, graphical representation, clear? Of the family tree. तो इसके बेस में क्या फाइंड आउट करना था? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट, इन ए फैमिली. देयर इज हाउ मेनी प्रोबेबिलिटी टू ट्रांसफर द जीन, क्लियर, आइदर कॉज द डिसीज इन नेक्स्ट जनरेशन. ये हमने किसे स्टडी किया था? पेडिग्री एनालिसिस. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स फ्रेंड्स कितने जनरली देखा जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स से वो दो टाइप हमने क्लासिफाइड किया गया. जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनली टू टाइप्स. Which one? Mendelian and chromosomal, right? तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हो जाएगा? Generally classified, there is a defect in a gene, right? Due to the defect in a gene, either due to the mutation in a gene, they cause some disease known as the genetic disorders. Like an example उसमें बहुत सारे लिए गए थे. Autosomal dominant, autosomal recessive, sex-linked dominant, sex-linked recessive. तो generally genetic disorders है वो दो टाइप का हो सकता है. There is the two type of genetic disorders, clear? Mendelian disorders and एक हो जाएगा chromosomal disorders. Genetic disorders mainly classified into two types, Mendelian and chromosome. Mendelian आपको मालूम, Mendel's work on pea plant, either they near about gives the laws related to gene only, not a chromosome, right? तो यहाँ पे Mendelian disorders, it means defect can be occurs in a single gene only. Or second one is chromosome, defect can be occurs in a chromosome. The alternation or mutation in a single gene. Alternation or mutation of a single gene, right? और chromosomal में क्या आ जाएगा? It is caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. It is caused due to the absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosome. In a cell, there is mainly 23 pairs of chromosome. It means total 46. तो यहाँ पे क्या दिया है? Absence, either absence एक निकाल दो तो हो गया absence, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो हो गया excess. एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो गया, जहां पे नंबर है वो शिफ्ट हो जा, तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट तो कौन सा टाइप का आ जाएगा? क्रोमोसोमल. क्लियर? डिसऑर्डर्स. और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दिया है अल्टरनेशन और म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन. इट्स एन ए क्रोमोसोम. Chromosome contains gene in which a specific gene are
of DNA, or in DNA, it means in a gene there is a specific type of defect can be occurs. Addition, deletion, transversion, clear, in a gene, not in a chromosome, clear. So यहाँ पे in a chromosome contain gene or defect can be occurs in a gene, right, not in a DNA. It means defect in a gene known as the Mendelian disorders. तो ये दो टाइप हो गया, इसके बेस हमें डिटेल टाइप स्टडी करना है, क्लियर. तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था इसके टाइप्स में आपको याद हो तो इसके टाइप्स हमने कल 4 टाइप्स के लिए थे. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से टाइप्स हो जाएगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पेडिग्री एनालिसिस में लिया था. एग्जांपल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स लेंगे तो देयर इज द टोटल 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. आउट ऑफ 22 पेयर से वो कैसा है? ऑटोसोम. 22 आर ऑटोसोम और लास्ट वन इज एक्स और वाई, आइदर एक्स और एक्स इन फीमेल. इन फीमेल XX और मेल XY. तो ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम और ये हो गया ऑटोसोम क्रोमोसोम, राइट. तो दो टाइप हो गया. मे बी डिफेक्ट कैन बी अकर्स इन ऑटोसोमल और आइदर इन ए सेक्स क्रोमोसोम, right? It means gene can be present in a sex chromosome either in a autosome chromosome. May be dominant or recessive. तो आगे हमने स्टडी किया था पेडिग्री में. ट्रिक क्या देगा? आपको ट्रिक बताया थे, राइट. तो ट्रिक में क्या लिया था हमने? सबसे पहले कोई भी पेडिग्री दिया हुआ है तो अफेक्टेड चिल्ड्रन, अफेक्टेड एनी ऑफ द चिल्ड्रन इफ दे हैव ए अफेक्टेड पेरेंट्स, तब क्या इंडिकेशन था? डोमिनेंट, क्लियर. कहीं पे भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है और उसमें अगर चिल्ड्रन भी अफेक्टेड होती है कैसे टाइप का हो जाएगा? कैसे टाइप हो गया? डोमिनेंट. बट सॉरी, अफेक्टेड इंडिविजुअल है, अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म, आइदर चिल्ड्रन है अफेक्टेड पेरेंट्स, तब ये हो गया डोमिनेंट. बट डू नॉट पजेस अफेक्टेड पेरेंट्स, तब ये कैसे टाइप का हो जाएगा? रिसेसिव. तो पहला ट्रिक किया था ना, the disorders can be observed in all generation, first, second, third, सभी में अगर है तो ये कैसे टाइप का हो गया? डोमिनेंट, क्लियर. बट इट विल बी स्किपिंग लेफ्ट, क्लियर, नहीं है तो ये कैसे टाइप का हो जाएगा? रिसेसिव. तो यहाँ पे दो टाइप हो गया था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. और दो टाइप के यहाँ पे क्रोमोसोम है, ऑटोसोम और सेक्स. तो कौन कौन से टाइप आप ले लेंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट. सेकंड कौन सा हो जाएगा? ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफेक्ट क्या है? डोमिनेंट में एक ही जीन अगर होगा, अगर वो कैसा है? डिफेक्टिव है, फिर भी डिसीज हो रहा है. सेकंड है वो नॉर्मल है, फिर भी ऑर्गेनिज्म दे शोज द डिफेक्ट. तो कौन सा टाइप का हो गया? डोमिनेंट, राइट. और मान लो रिसेसिव में दोनों के दोनों जीन अगर डिफेक्टिव है तो ही वहां पे क्या शोज करेगा? डिफेक्ट शोज करेगा, फिर डिसीज, डिफेक्ट. रेडी. तो ये कैसा टाइप का हो गया? रिसेसिव. तो यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट. देन आफ्टर और कौन कौन से ले लेंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव के बाद कौन सा हो जाएगा? सेक्स क्रोमोसोमल, क्लियर. तो सेक्स लिंक्ड, यहां पे आप एक्स भी लिंक ले सकते हो. सेक्स लिंक मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. रेडी. क्यों एक्स लिंक है यहाँ पे? सेक्स लिंक मतलब आप क्या ले सकते हो? एक्स लिंक ले सकते हो. क्यों एक्स लिंक ले सकते हो? बिकॉज देयर इज द टू एक्स विल बी प्रेजेंट ओनली इन ए फीमेल, नॉट इन ए मेल. मेल में दो एक्स है ही नहीं, क्लियर. तो वहां पे एक्स लिंक आप ले सकते हो. एक्स है और दो है, क्लियर. एक्स लिंक. वाई तो ओनली एक ही होता है, वो भी किसमें होता है? मेल. वाई कभी पेयर में होता नहीं. तो सेक्स लिंक में वाई लिंक स्पेसिफिक लेना पड़ेगा. सेक्स लिंक लिए तो एक्स लिंक रिसेसिव, वाई लिंक डोमिनेंट एंड वाई लिंक रिसेसिव. ऐसे टाइप हो जाएंगे, राइट. ये सभी कैसे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के टाइप से ये, रेडी. तो ये दो डिफरेंशिएट किया हमने, रेडी. उसके बाद हमें इसको डिटेल में पढ़ना है. इसके एग्जांपल या दो फ्रेंड्स तो आपको कल लिखवाए थे.
क्लियर? जैसे पेडिग्री लिया था तो हम डिटरमाइन कर रहे थे गिवन पेडिग्री इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट आइदर ऑटोसोमल रिसेसिव आइदर सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव, और उसके नीचे मैंने आपको कल एग्जांपल लिखवाए थे, राइट? तो वन बाय वन हमें क्या लेना है? पेडिग्री तो हमने स्टडी कर लिया, अब उसके रिलेटेड डिसीज स्टडी करना है। पैटर्न तो वही सिंपल हो गए, 4 ही के पैटर्न रहेंगे, क्लियर? ऊपर पेरेंट्स में नहीं है और नीचे चिल्ड्रन में डेवलप हो रहा है तो क्या हो गया? रिसेसिव टाइप हो गया, और हर एक जनरेशन में शोज कर रहा है डिसीज, तब क्या हो गया? डोमिनेंट टाइप हो गया। सेकंड क्या जो मैं ट्रिक क्या दिया था? सेकंड ट्रिक ये था, they shows a specific type of pattern, follow a specific type of pattern. Which type of pattern? Male to female and female to male either. वहां पे क्या हो जाएगा? female to male and male to female, clear? मतलब father to daughter and daughter to son, इस तरह से, राइट? तो इस तरह का पैटर्न मिला तो क्या हो जाएगा? एज्ड लिंक्ड हो जाएगा, राइट? और नहीं मिला तो एक कैसे टाइप का हो जाएगा? ऑटोसोमल, राइट? तो पहले हमें फाइंड आउट करना है डोमिनेंट और रिसेसिव, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है ऑटोसोमल और एज लिंक। ये कल हमने अच्छी तरह से पेडिग्री पूरा स्टडी कर लिया। अब हमें डिटेल क्या बनना है? तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज, क्लियर? और व्हाट विल बी हैपन, व्हिच टाइप ऑफ सिम्टम्स विल बी डेवलप इन सच टाइप ऑफ डिसीज, राइट? तो वन बाय वन लेते हैं हम मेंडेलियन। सबसे पहले कौन सा लेंगे? मेंडेलियन, उसमें भी ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव सेक्स लिंक, राइट? तो सबसे पहले हो जाएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हेडिंग आप दे सकते हो विच टाइप ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डिफेक्ट इन ए जीन, राइट? इसमें भी पहला कौन सा? ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप। ऑटोसोमल डोमिनेंट में सबसे पहला डिसीज हम लेंगे तो डिसीज का नेम हो जाएगा वहां पे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कल आप देखिए तो एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का जब पेडिग्री बनाया था तो उसमें हमने लिखा था, क्लियर? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्लियर? ऑटोसोम भी है, कौन से क्रोमोसोम में है? अप टू 22 में कहीं प्रेजेंट होगा, और वो कौन से टाइप का है? डोमिनेंट टाइप दिया हुआ है। क्या होता है उसमें ऑटोसोमिक डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में? इट इज ए लॉन्ग टर्म जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्लियर? इसमें क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म जेनेटिक डिसऑर्डर, ये हो गया लॉन्ग टर्म जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। दैट अफेक्ट मसल्स फंक्शन, क्लियर? किसको अफेक्ट करता है? फंक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स का क्या फंक्शन होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कल आपको बताया था कि अगर एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नाउ दे कैन नॉट बी रिलैक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। कौन सा मसल? कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स कैन नॉट बी रिलैक्स्ड, राइट? यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में क्या हो जाएगा? अफेक्ट इनटू मसल फंक्शन, अनेबल टू रिलैक्स, क्लियर? मसल्स अनेबल टू रिलैक्स, रेडी? तो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स कैन नॉट बी रिलैक्स्ड, ये हो गया मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। कौन सा टाइप का हो गया डिसीज? ऑटोसोमल डोमिनेंट। पेडिग्री आपको मालूम है, तो ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल। नीचे यहाँ पे फीमेल, अगेन फीमेल, फिर आ गया मेल, यहाँ पे मैरिज करवाया, नेक्स्ट हो जाएगा अगेन मेल, फीमेल, फीमेल, इस तरह से। ये है 1 2 3 जनरेशन, राइट? डोमिनेंट है तो कहीं एक पे भी डिसीज है तो नीचे क्या होगा? डिसीज होगा, क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? डोमिनेंट टाइप। यहाँ पे भी है तो नीचे कहीं ना कहीं डिसीज होगा, राइट? अब देखिए आप, ये आपको ट्रिक के बेस से ये पेडिग्री दिया, उन्हें कैसे बनाया ना? ये पेडिग्री है, वो कौन सा टाइप का? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, तो सेक्स डोमिनेंट और रिसेसिव। पहला क्लू ये था, द अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव अफेक्टेड पेरेंट्स,
राइट यस, तो कौन से टाइप का हो गया, डोमिनेंट। अब आपको क्या बताया था, अब जो ही रह गया ऑटोसोमल आइदर सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट ये तो फिक्स हो गया, अब ये ऑटोसोमल आइदर सेक्स लिंक्ड है तो पैटर्न फॉलो करना था, फीमेल ट्रांसफर टू मेल, ओके, बट फीमेल भी तो है, देन आफ्टर मेल ट्रांसफर टू फीमेल, नहीं यहाँ पे मेल है, तो कैसे टाइप का हो गया, ऑटोसोमल। इफ दे कैन फॉलो a specific type of pattern, female to male, male to female only, right, तब ये कौन से टाइप का हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड, राइट। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री हो गया, उसका एक एग्जांपल क्या हो गया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। सेकंड एग्जांपल आप उसमें लिख सकते हो हंटिंगटन्स डिसीज। सेकंड इज हंटिंगटन्स HD, हंटिंगटन्स डिसीज, राइट। ये कौन से क्रोमोसोम पे होता है, डिफेक्ट कैन बी अकर्स इन क्रोमोसोम नंबर 4। ये डिफेक्ट कौन से क्रोमोसोम में होता है, इन क्रोमोसोम नंबर 4। क्रोमोसोम नंबर 4, ये जीन इसका कहां पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट दिया हुआ है। इट इज a fatal genetic disorder that cause the progressive breakdown of nerve cell in the brain. It means affect in a nerve cell, effect in nerve cell, right। क्या दिया हो, fatal genetic disorders, fatal मतलब highly effective, the organism will be a died, right। तो fatal genetic disorders in which the nerve cell will be affected, ये हो गया, in a nerve cell affected in nerve cell of a brain, right। then problem with the mood, इसमें क्या क्या चेंज हो जाएगा, symptoms क्या हो जाएगा, problem with mood swinging होगा, mental abilities पे इफेक्ट होगा, mental abilities, then after coordination, joint regulation, different parts एक साथ वर्क नहीं कर सकते, jerks body movement, jerk बॉडी मूवमेंट में जर्क स्पेसिफिक वर्क नहीं हो सकता है, ये हो गया प्रॉब्लम विद मूड, मेंटल एबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन, जर्क बॉडी मूवमेंट। कैसा फेटल डिसीज है और नर्व सेल अफेक्ट होता है, होते ब्रेन, ये नर्व सेल ऑफ ए ब्रेन विल बी अफेक्टेड एंड उसमें ये सभी प्रॉब्लम्स होगा। तो कौन सा हो गया, हंटिंगटन्स डिसीज। कौन से टाइप का डिसीज है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप, क्लियर। नेक्स्ट डिसीज हो जाएगा पॉलीडेक्टाइलस इन मैन, पॉलीडेक्टाइलस। थर्ड वन इज पॉलीडेक्टाइल इन मैन। पॉलीडेक्टाइल इन मैन क्या हो जाता है, कल भी आपको एग्जांपल बताया था, पॉलीडेक्टाइलस इन मैन है, वहां पे मोर नंबर ऑफ फिंगर, क्लियर, मोर नंबर्स ऑफ फिंगर इन वन हैंड, एक ही हैंड में फिंगर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ फिंगर्स, मोर देन 5, मोर नंबर ऑफ फिंगर। मोर नंबर ऑफ फिंगर इन वन हैंड, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट। और एक उसके रिलेटेड लिखते क्राई डू चैट, बट ये डोमिनेंट है ऐसा नहीं बोल सकते हो, कैसा हो जाएगा, क्राई डू चैट। कई बार ये नीचे में पूछा जाता है क्राई डू चैट, क्लियर। रियल में देखा जाए तो ये है ऑटोसोमल डिलीशन टाइप, ऑटोसोमल डिलीशन, डोमिनेंट टाइप तो नहीं ले सकते, बट ऑटोसोमल डिलीशन रियल में देखा जाए तो डोमिनेंट भी है, क्लियर। और इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 5,
उसको 5P भी बोला जा सकता है, डिसीज का नेम है। क्राई डू चेक में सिम्टम्स क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स, द चिल्ड्रन न्यू बोर्न बेबी विल बी ए क्राई लाइक ए कैट, क्राई लाइक कैट, जो चिल्ड्रन होगा चाइल्ड न्यू बोर्न वो कैसे रोएगा, क्लियर, क्राई कैसे करेगा, लाइक एन कैट, क्लियर। डिलीशन होता है क्रोमोसोम नंबर 5 पे बाय चांस म्यूटेशन से क्या हो जाएगा, डिलीशन, तो उससे कौन सा डिसीज हो गया, क्राई डू चेक, बट उसका कोई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मतलब इनहेरिटेड मैकेनिज्म फाइंड आउट नहीं हुआ है, क्लियर। बट है कौन सा टाइप का हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप हो गया, रेडी। ये हो गया क्राई डू चेक, सभी एग्जांपल किसके, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप, रेडी। ये समझ में आ गया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, हंटिंगटन्स डिसीज, polydactylus in man and cry do check, all are example of autosomal dominant, right। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, रिसेसिव टाइप। डिसीज भी पढ़ना है पूरे क्लास में, क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज, उसमें क्या क्या होता है, राइट। अब नेक्स्ट हो जाएगा ऑटोसोमल, यहाँ पे था डोमिनेंट, तो हेडिंग क्या चेंज हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। हो गया रिसेसिव। पहले हम आपको पेडिग्री बता देते हैं, पेडिग्री में क्या चेंज करना पड़ेगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल डू नॉट हैव ए अफेक्टेड पेरेंट्स, पेरेंट्स में कहीं इफेक्ट है नहीं, बट ऑर्गेनिज्म में वो कैसा है, अफेक्टेड है, राइट। तब ये क्या चूज करेगा, यहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा रिसेसिव टाइप। कौन से टाइप का हो गया, रिसेसिव। अब यहां पे हो जाता है ऑटोसोमल और सेक्स लिंक, क्या फॉलो होना चाहिए, क्या, फीमेल टू मेल और मेल टू फीमेल, मोस्ट ऑफली मेल विल बी अफेक्टेड दिया हुआ है तो वाई लिंक्ड हो जाएगा, फिर फीमेल हो जाएगा तो एक्स लिंक्ड हो जाएगा, बट पैटर्न फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे मेल टू मेल लाया है, क्लियर। अब अफेक्टेड इंडिविजुअल है, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो कौन सा टाइप का हो गया, रिसेसिव टाइप हो गया, और पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, क्लियर। पैटर्न हमने कल बताया था स्टार्ट में, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, ऐसा नहीं हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप हो गया, रेडी। तो मेन तो पेरेंट्स देखना है, कहीं पे भी नहीं है, और अगर वो डिसीज स्प्रेड कर रहा है, क्लियर, एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तब ये दोनों में, फीमेल और मेल दोनों में है ना, राइट, तब ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप हो गया, राइट, सॉरी रिसेसिव टाइप हो गया। एग्जांपल उसमें हम लेंगे, फर्स्ट एग्जांपल ऑटोसोमल डोमिनेंट में थैलेसेमिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया, थैलेसेमिया में क्या होगा, इन दिस केस द रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन इज नॉट जनरेटेड इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम दिस disease, required hemoglobin, required hemoglobin is not generated, जितना हेमोग्लोबिन बनना चाहिए उतना बनेगा नहीं, क्लियर। अल्फा और बीटा चेन होता है हेमोग्लोबिन में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेल्पफुल फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, गैसियस मॉलिक्यूल्स, क्लियर, from lungs to the different parts of body, the hemoglobin properly नहीं बनेगा। it is a two type of disease, types इसके alpha and beta थैलेसेमिया, अल्फा एंड बीटा थैलेसेमिया, दोनों में डिफरेंट क्या हो जाएगा, alpha thalassemia, it is under the control of two genes, it is under the control of two gene, दो जीन के कंट्रोल में होता है, HBA1 and HBA2, right, on chromosome number
16। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसी बार पूछा गया था बोर्ड में। बीटा थैलेसीमिया इट इज ए कंट्रोल ऑफ सिंगल जीन HB बीटा। यहाँ पे क्या था, HbA1 मतलब अल्फा, और ये बीटा चेन के रिलेटेड HB बीटा प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये 16 पे है और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। इसमें 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे 1 जीन रिस्पॉन्सिबल है। सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन इज इम्पोर्टेंट। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, तो synthesis of alpha chain, synthesis of alpha chain is impaired effect। क्लियर। और यहां पे क्या हो जाएगा, synthesis of beta chain is impaired। रेडी। ये दो हो गया डिफरेंस, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है, तो यहाँ पे बीटा चेन में अल्फा चेन में इफेक्ट होगा तो अल्फा थैलेसेमिया, बीटा में इफेक्ट हुआ तो बीटा थैलेसेमिया। अल्फा चेन प्रोडक्शन का जीन कहाँ पे प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 और बीटा चेन के रिलेटेड जीन है क्रोमोसोम नंबर 11। राइट। और ये कौन से टाइप का डिसीज हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव। मतलब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप डिसऑर्डर से ही। राइट। अब ऑटोसोमल रिसेसिव है तो पेरेंट कैसा हो जाएगा, अगर 3 टाइप यहाँ पे बनेंगे, मे बी ऑर्गेनिज्म। अब मेल फीमेल से मतलब नहीं है। राइट। यहाँ पे मे बी ऑर्गेनिज्म विच है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं ऑटोसोमल। इसलिए ये दोनों जीन है वो कैसे हो सकते हैं, नॉर्मल। आइदर एक नॉर्मल और एक क्या हो गया, डिफेक्टिव डिसीज जीन हो गया, तो उसको बोल सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ये हो गया कैरियर ऑफ दिस डिसीज। और यहाँ पे दोनों अगर डिफेक्टिव जीन है तो ये कैसे हो जाएगा, डिसीज। रेडी। अफेक्टेड हो गया इंडिविजुअल, ये नॉर्मल इंडिविजुअल और ये अफेक्टेड। अब यहाँ पे एक केस में जैसे मान लो मैरिज होना है, तब चांसेस है, कितने % चांसेस होता है कि प्रोजेनी में क्या होगा, थैलेसेमिया हो जाएगा। इसमें जनरली ब्लड और प्रॉपर्ली नहीं फॉर्म होता है, इसलिए कंटिन्यूअसली ब्लड और ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। क्लियर। थैलेसेमिया है, हीमोफीलिया है, इन सच टाइप ऑफ डिफेक्टिव पर्सन कंटिन्यूअसली ब्लड विल बी required to transfer, right, in their body in specific period wise specific time पे हमें क्या करना है, ब्लड है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए ऐसे पर्सन में क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STD, लाइक एन एग्जांपल एड्स। क्लियर। होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंफेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो यहाँ पे ऐसे पर्सन में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। बिकॉज सच टाइप ऑफ डिसीज विल बी ट्रांसफर थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। क्लियर। तो ब्लड टू ब्लड से जो भी ट्रांसफर होता है ऐसे डिसीज है थैलेसेमिया और हीमोफीलिया में होने के चांसेस ज्यादा। नीट का क्वेश्चन बनता है। क्लियर। याद रखिएगा, देयर इज द मोर चांसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ AIDS, either sexually transmitted disease, clear, in the thalassemia or either hemophiliac person. Answer क्या हो जाता है, yes, because there is the periodically transfusion of blood required to transfer the blood in affected individuals. अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे नॉर्मल पर्सन लिया जाए। क्लियर। मैरिज है, नॉर्मल पर्सन का नॉर्मल पर्सन के साथ मैरिज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के दोनों नॉर्मल है। राइट। यहाँ पे भी दूसरा इंडिविजुअल भी कैसा है, नॉर्मल है। एक हो गया फीमेल और एक हो गया मेल। राइट। तो सभी के सभी उसके चाइल्ड कैसा पॉसिबल है, नॉर्मल। राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है, वन इज द कैरियर और अनदर वन इज नॉर्मल। क्लियर। वैसे केस में एक इंडिविजुअल नॉर्मल है और एक कैरियर है, तब ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया कैरियर, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया कैरियर। 50% है वो नॉर्मल
और 50% है वो कैसा हो जाएगा, कैरियर ऑफ डिसीज। तभी भी पर्सन अपना नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकता है। कैरियर पर्सन कैन सर्वाइव ए नॉर्मल लाइफ, देयर इज नो प्रॉब्लम्स इन देयर फ्यूचर, राइट। देन आफ्टर हम लेते हैं दोनों के दोनों कैसे है, कैरियर। अगर दोनों कैरियर है तब ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया कैरियर, ये हो गया कैरियर और ये हो गया डिसीज्ड। यहाँ पे चांसेस है एक जो 25% उसमें कैपिटल ए नॉर्मल 25%, कैपिटल ए कैरियर 50% और स्मॉल ए अफेक्टेड 25%। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन में ये पर्सन है वो कैसा है, अफेक्टेड इट मीन्स कैसा हो जाएगा, डिसीज पर्सन थैलेसेमिया, और दे कैन नॉट सर्वाइव देयर नॉर्मल लाइफ अप टू मैच्योरेशन। तो ऐसा पर्सन तो कभी सर्वाइव नहीं कर सकता है, राइट। और कंटिन्यूसली उसको ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो कैन नॉट बी सर्वाइव अप टू मैच्योरेशन। तो दो हो सकते हैं, ओनली क्या क्या हो सकता है, कैरियर पॉसिबल है और कैरियर और नॉर्मल पॉसिबल। नॉर्मल है तो 100% नॉर्मल। अगर एक कैरियर है तो उसको मैरिज किसके साथ करना चाहिए, नॉर्मल के साथ। तो उसके जो चाइल्ड होंगे वो 50% नॉर्मल और 50% कैरियर, फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्लियर। बट यहाँ पे दोनों पर्सन अगर कैरियर है, दोनों पर्सन कैसे है, कैरियर मेल और फीमेल, क्लियर, हस्बैंड वाइफ दोनों है, तब उसमें 25% चांसेस है कैसे, अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए, थैलेसेमिक ऑर्गेनिज्म के लिए, चाइल्ड के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे ये टेस्ट क्यों किया जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन में कितने % चांसेस है अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए। तो ऐसे जो पर्सन है कैरियर ऑफ थैलेसेमिया, उसको मैरिज किसके साथ करना चाहिए, नॉर्मल पर्सन के साथ। कैरियर थैलेसेमिया के साथ मैरिज हो गया तो 25% ओनली नॉर्मल, 50% तो कैरियर, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 25% अफेक्टेड होगा तो वैसा चाइल्ड फर्दर सर्वाइव नहीं कर सकता है, राइट। तो ये हो गया उसका क्रॉस, कौन सा टाइप का हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज हो गया, राइट। ये हो गया फर्स्ट हो गया थैलेसेमिया, रेडी। सभी में रिसेसिव में इसी तरह प्रोबेबिलिटी बनेगा, क्लियर। सेकेंड एग्जांपल है थैलेसेमिया के बाद सिकल सेल एनीमिया। सेकेंड एग्जांपल हो गया सिकल सेल एनीमिया, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप लोग सब जानते हो। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया कहाँ, पॉइंट म्यूटेशन में पढ़ा था, याद है आपको, क्लियर। 6 पोजीशन याद है कुछ। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। कौन से क्रोमोसोम पे होता है ये सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे तो बता दिया, अल्फा और बीटा थैलेसेमिया क्रोमोसोम नंबर 16 और 11। और सिकल सेल एनीमिया के लिए थैलेसेमिया में यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन कर देता हूँ, अल्फा के लिए क्रोमोसोम नंबर 16 और बीटा थैलेसेमिया के लिए क्रोमोसोम नंबर 11, राइट। ये याद रखना जरूरी है। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया अफेक्ट कहाँ पे होगा, ऑन क्रोमोसोम नंबर कौन सा हो जाएगा, 11। यहाँ पे भी 11 क्रोमोसोम पे इसका जीन अवेलेबल है। किसके लिए, जो डिफेक्ट होता है स्पेसिफिक आरबीसी में। आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, लाइक एंड सिकल, सेमी ल्यूनार, इस तरह से उसका शेप हो जाता है, इरेगुलर, क्लियर, सिकल सेल बन जाएगा। सिकल सेल एनीमिया, वहां पे जो जीन है 6th पोजीशन पे GAG प्रेजेंट है, क्या है, एट द प्लेस ऑफ पोजीशन नंबर 6 ट्राइप्लॉइड कोडन में ये है 5, 4, 3, तो 1, 2 इस तरह से जीन है। तो 6th पोजीशन पे GAG है, तब वो क्या बनाता है, GAG दैट कोड फॉर ए ग्लूटामिक एसिड, GAG दैट कोड फॉर ए ग्लूटामिक एसिड। ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन GAG विल बी चेंज, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन GAG से क्या हो गया, GUG एट द प्लेस ऑफ 6th पोजीशन, GUG ये वाला प्लेस पे क्या गया, GUG दैट कोड फॉर ए वेलाइन। ओनली इतना ही चेंज हुआ, एक ही बेस पेयर का चेंज हो गया, GAG के प्लेस पे क्या गया, GUG। तो ग्लूटामिक एसिड विल बी नॉट फॉर्म एंड दे फॉर्म ए वेलाइन। तो 6th पोजीशन पे वेलाइन आ गया, बिकॉज ऑफ दिस द आरबीसी विल बी ए
the shape of RBC will be changed like a sickle shape, or disease is known as sickle cell anemia. General shape of the RBC is biconcave disc cell, but due to mutation, the shape will be changed and form a sickle-like semi-lunar arc. Here, lunar, ले चंद्र अर्ध चंद्राकार जिसको बोलते हैं, सिकल के जैसा शेप हो जाता है तो उसको बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। जिन कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है HbA, HbS। क्लियर, ये हो गया। एग्जाम्पल में इसका क्रॉस लेते हैं तो जीन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Hb। हीमोग्लोबिन में इफेक्ट होता है ना, क्लियर। जैसे ऊपर में आ रहा था थैलेसेमिया में, यहाँ पे भी HbA, HbA, तो ये कैसा हो गया, नॉर्मल। HbA और एक हो गया अफेक्टेड, तो ये हो गया कैरियर। और HbS जब दोनों जीन आ गए साथ में अफेक्टेड, तब ये हो गया डिसीज्ड पर्सन। इट मीन्स अफेक्टेड क्रॉस सिमिलर लाइक एन थैलेसेमिया। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, जैसे दोनों पर्सन नॉर्मल है, HbA, HbA, राइट, और दूसरा फीमेल भी कैसा है, HbA और HbA, तो सभी के सभी कैसे आ जाएगा, HbA, HbA मतलब नॉर्मल, HbA, HbA, इट मीन्स अगेन नॉर्मल, HbA, HbA नॉर्मल, और सभी के लास्ट वन इज ऑल्सो ए नॉर्मल। अब यहाँ पे इसी में हम चेंज करते हैं, वन ऑफ द पर्सन आइदर मेल और फीमेल, इट्स एन कैरियर, यहाँ पे डिफेक्टिव जीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, और अनदर वन इज नॉर्मल, तो यहाँ पे 100% हो गया दोनों नॉर्मल में। यहाँ पे HbA, HbA नॉर्मल, HbA, HbS कैरियर, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया यहाँ पे HbA, HbS कैरियर। बट यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल है HbA और HbS कैरियर, राइट, तो 50% नॉर्मल, 50% कैरियर, नॉर्मल एंड कैरियर। यहाँ पे HbA, HbS, सेकेंड पर्सन में भी HbA और HbS, तो HbA, 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 HbS, HbA, HbS और HbS, HbS, रेडी। तो यहाँ पे HbA, HbA कितने परसेंट, 25%, HbA, HbS 50% और HbS, HbS 25%, रेडी। तो डिसीज्ड पर्सन अफेक्टेड कितना है, 25%, कैरियर है 50%, नॉर्मल है 25%। तो ऐसे अगर इंडिविजुअल में होगा दोनों कैरियर, तो 25% नॉर्मल, 50% कैरियर और 25% अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो दोनों केस में सेम हो गया, कौन सा, यहाँ पे थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, जितने भी रिसेसिव डिसीज है उसमें इस तरह से क्रॉस बनेगा, राइट। तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी विल बी ए चेंज देयर शेप, कैसे टाइप का हो जाएगा, लाइक एन सिकल। और डिफेक्ट कैन बी ऑकर्स इन विच टाइप ऑफ जीन, डिफेक्ट कैन बी ऑकर्स इन ए which type of gene, chromosome number 11 they contain this gene, and at the place of 6th position there is the GAG will be altered and form a GUG. At the place of glutamic acid there is the valine is formed and their RBC shape will be changed. Next is phenylketonuria, इसका थर्ड एग्जांपल कौन सा है,
phenylketonuria. Clear? ये है the gene will be present on chromosome number 12. Phenylketonuria. ये inborn error in metabolism. At the place of born, children have a defect in their metabolic process. इसको बोला जाता है inborn error in metabolism. At the time of birth, they have a defect, right? Some defect. कहाँ पे डिफेक्ट हो सकता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए. कौन सा डिसीज है? डिसीज है phenylketonuria. क्या हो जाएगा phenylketonuria में? वहाँ पे affected individual lack an enzyme. Affected individual have a lack an enzyme. Name of enzyme is that converts the amino acid phenylalanine. Phenylalanine is converted into tyrosine, or for this enzyme is required is phenylalanine hydroxide. देखिए, phenylalanine is converted into tyrosine with the help of phenylalanine hydroxylase. हाइड्रोक्साइलेज जो है वो फिनाइलएलानाइन को किस में कन्वर्ट करेगा? टायरोसिन. क्लियर? और ये एंजाइम के रिलेटेड जीन, द प्रोडक्शन ऑफ दिस एंजाइम फिनाइलएलानाइन, द जीन विल बी प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 12. इफ डिफेक्ट either mutation can be occurred in a gene for a phenylalanine hydroxylase present on chromosome number 12, they cannot be produced. अगर ये जीन नहीं बनता है तो phenylalanine is not converted into tyrosine. Clear? तब क्या होगा? एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? phenylalanine accumulated and converted into phenylpyruvic acid. Accumulated and converted into phenylpyruvic acid. Phenylpyruvic acid. Phenylalanine accumulated, because it cannot be converted into tyrosine. It will be accumulated in a blood and converted into phenylpyruvic acid and its other derivatives. Accumulation of this in brain. Phenylalanine accumulated and converted into phenylpyruvic acid and other derivatives. Accumulate होकर किसमें convert हो गया? phenylpyruvic acid and other derivatives. Because of phenylalanine hydroxylase cannot be produced. It cannot be produced. The phenylalanine cannot be converted into pyruvic acid. Because of this accumulation of phenylalanine and converted into phenylpyruvic acid and their derivatives, it will be accumulated in a blood or a brain. कहाँ पे accumulate होगा? Blood or in a brain. Due to accumulation, there is the mental retardation. Accumulation of this in brain and result in mental retardation. Due to accumulation in brain and as a result in mental retardation. क्या होगा? mental retardation, right? तो ये रखना है. phenylketonuria में phenylalanine is converted into tyrosine with the help of enzyme phenylalanine hydroxylase. Their enzyme, for the enzyme production, the gene is present in a chromosome number 12. Due to defect in this gene, this enzyme cannot be produced and phenylalanine cannot be converted into tyrosine. If they cannot be converted, they can be changed into phenylalanine
phenyl pyruvic acid and their derivatives, and these derivatives of the phenyl pyruvic acid will be accumulated in our brain or either in a blood, and they cause the mental retardation. तो ये किसका हो गया? phenyl कीटोनुरिया, राइट? तो इनबोर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म, ये कौन सा है? इनबोर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस में डिफेक्ट हुआ, राइट? तो इसके लिए भी ये कौन सा होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप हो गया। रेडी? नेक्स्ट, ये नोट डाउन करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई सारे क्वेश्चन नीट के बेस पे इसमें पूछा जाता है। क्रोमोसोम नंबर, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी अकर्स, क्लियर? अब हमें पढ़ना है आगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। फोर्थ वन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। कल आपको बताया था, जिसमें जहां पे म्यूकस प्रोडक्शन होता है वो सभी क्या हो जाता है? सोलिडिफाइड हो जाता है, क्लियर? ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसका जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 7। कौन सा है? 7। क्या होगा? अफेक्टेड द सेल दैट प्रोड्यूस द म्यूकस, अफेक्ट those cells which produced म्यूकस, स्मूथ स्टिकी लेयर जो भी सेल बनाता है वहां पे अफेक्ट होगा, क्लियर? म्यूकस आइदर स्वेट और डाइजेस्टिव जूस। It caused this fluid to become a thick and sticky. इसमें क्या हो जाएगा? The fluid will be a thick fluid becomes thick and sticky. ये fluid कैसे हो जाएगा? Thick and sticky बन जाएगा। Then they plug up the tubes and duct. Clear? They plug up the tubes, ducts जहां से रिलीज होता है, and passage way, देखिए जहां पे क्या बनता है? म्यूकस बनता है, स्वेट, डाइजेस्टिव जूस बनता है, वो सभी टाइप पे जहां पे सिक्रेशन होता है वो फ्लूइड कैसे बन जाता है? थिक बन जाता है। ड्यू टू थिकनेस एंड स्टिकीनेस ऑफ दिस फ्लूइड द ग्लैंड्स then after plugs glands, tubes and ducts will be a, as a passageway will be a so called plugged up, clear? Due to this this secretion cannot be released out at this place. ये किसमें होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। और for this there is the gene is present in chromosome number 7. Next one is alkaptonuria. Fifth one is alkaptonuria. Again, inborn error in metabolism. Fifth one is alkaptonuria. Alkaptonuria है inborn error in metabolism. Other name is black urine disease. Black urine disease. ब्लैक यूरिन डिसीज, राइट? क्यों इसको ब्लैक यूरिन, ब्लैक बोन डिसीज भी बोला जाता है? ब्लैक बोन डिसीज also another name of alkaptonuria. क्या हो जाएगा उसमें? बिल्कुल सिंपल, इनबोर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म में, जैसे हमने फिनाइल कीटोनुरिया स्टडी किया था, सिमिलर लाइक when the gene is present the enzyme has homogentic acid. होमोजेंटिसिक एसिड, एंजाइम किसके लिए? जीन किसके लिए? फॉर द होमोजेंटिक एसिड। पहले होमोजेंटिसिक एसिड, होमोजेंटिसिक एसिड, राइट? होमोजेंटिसिक एसिड
it will be converted into acetoacetic acid. Acetoacetic acid. Homogentic acid is converted into acetoacetic acid with the help of enzyme homogentic acid oxidase. It means homogentic acid is converted the homogentic acid into acetoacetic acid due to defect of gene किसका for the production of enzyme homogentic acid oxidase. The defect can be occurs in which type of gene? They produce the enzyme. Which enzyme? Homogentic acid cannot be produced. Due to this, homogentic acid cannot be converted into acetoacetic acid. Due to defect in this gene, clear? Defect in this gene, the gene cannot produce enzyme. If the enzyme cannot be produced, homogentic acid cannot be converted into acetoacetic acid. Right? तो क्या होगा? Due to this homogentic acid accumulate in the blood, तो उसमें due to defect in this gene, either an enzyme cannot be produced due to defect homogentic acid accumulates in blood. The urine of such person turns black. Blood में accumulate हुआ. The urine of such person turns black while they expose into air. ऐसे पर्सन का यूरिन है वो ब्लैक हो जाएगा कब? जब वो एक्सपोज करेगा. when they expose in air. क्लियर? तो देखो क्या हो गया, सिंपल है. एल्केप्टोनूरिया, ब्लैक यूरिन डिसीज, ब्लैक बोन डिसीज. In such type of disease, the homogentic acid oxidase cannot be produced. Due to this, homogentic acid cannot be converted into acetoacetic acid. Or because of this, the homogentic acid will be accumulated in a blood, or it will be released into the urine. Blood में accumulate हुआ तो release कैसे होगा? Into urine. While such type of person release the urine and it will be react with the air. Here, person turns black when they expose to air. Urine of that person will be black because of while it will be exposed into air. Right? तो ये हो गया एल्केप्टोनूरिया, ब्लैक यूरिन डिसीज. राइट? नेक्स्ट है एल्केप्टोनूरिया के बाद अल्बिनिज्म. कौन सा है? अल्बिनिज्म. ये सभी किसका डिसीज है? याद है ना आपको? ऊपर हेडिंग है ऑटोसोमल रिसेसिव. सभी के सभी ऑटोसोमल रिसेसिव है. क्लियर? फिफ्थ के बाद नेक्स्ट लास्ट वन इज सिक्स्थ डिसीज, दैट इज अल्बिनिज्म. वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट. सिक्स्थ अल्बिनिज्म. क्लियर? तो अल्बिनिज्म में क्या हो जाएगा? इन विच मेलानिन पिगमेंट आर एब्सेंट. In which melanin pigments are absent. इसमें मेलानिन पिगमेंट क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा. आपको आगे हमने स्टडी किया हुआ है. They helpful for the production of our skin color. तो अल्बिनिज्म में मेलानिन पिगमेंट क्या हो गया? एब्सेंट हो गया. It is also inborn error in metabolism. एंजाइम उसको C6 जीन से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंजाइम टायरोसिनेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस. इन विच एंजाइम टायरोसिनेज कैन नॉट
produced. Hence, tyrosine cannot be converted into melanin pigment. Tyrosinase is helpful for the conversion of tyrosine into melanin. Or for this, the enzyme is required is tyrosinase. In such type of defect, tyrosinase cannot be produced. If tyrosinase cannot be produced, tyrosine cannot be converted into melanin pigment. Due to defect of melanin pigment, due to lack of melanin pigment, which type of disease is occurs? Albinism. Affected individual, इसमें क्या होगा? Very most important है ये point. Affected individual, complete or partial absence of pigment, complete or partial absence of pigment in their hair, skin and eyes. Right? ऐसे जो पर्सन जिसमें क्या अल्बिनिज्म, क्यों अल्बिनिज्म हुआ? ड्यू टू डिफेक्ट के occurs in a gene. The gene which is produced for the tyrosinase. What is the role of tyrosinase? Conversion of tyrosine into melanin. If tyrosinase cannot be produced, tyrosine cannot be converted into melanin. And due to lack of melanin pigment, complete or partial absence of melanin pigment, there is the absence of specific color into hair, skin और eyes. उसमें specific color नहीं होगा, white हो जाएगा. तो ऐसे पर्सन में ये white hair है, skin है, eyes के, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा. Also having number of vision defect. उसके अलावा they also having a number of vision defect. Individual have a number of vision defect, specific color दिखाई नहीं देगा. Clear? Then after very most important is known as the photophobia. Photophobia. Phobia it means डरना, right say, right? Then after due to lack of pigment, person are susceptible to sunburn. Person are susceptible to sunburn and chances of skin cancer. Sensitive to sunlight. Clear? पहला albinism. तो कैसे हो जाएगा? आपने देखा होगा कई सारे पर्सन हम जिसको कोड जैसा बोलते हैं ना, उसके जैसा रियल में वो नहीं, पर कहीं कहीं क्या हो जाना, मिसिंग हो जाना. कौन सा? पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट. क्यों नहीं बनता है? बिकॉज ऑफ टायरोसिनेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस. टायरोसिनेज, रोल ऑफ टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू मेलानिन. lack of tyrosinase, tyrosine cannot be converted into melanin. Or due to lack of melanin, there is the some defect can be occurs in hair, skin or eyes, their color. Then after photophobia, or last one is susceptible to sunburn and skin cancer. Clear? ऐसे पर्सन में सनबर्न होने के चांसेस, सनलाइट में ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता है, और स्किन कैंसर होने के चांसेस है. ये सभी डिसीज जो 6 डिसीज हमने स्टडी किया वो सभी किसका था? ऑटोसोमल रिसेसिव. जब दोनों के दोनों जीन साथ में रहेंगे तो पर्सन में डिफेक्ट होगा. एक जीन डिफेक्ट होगा तो पर्सन क्या हो गया? कैरियर. और दोनों के दोनों नॉर्मल है तो पर्सन आर नॉर्मल. क्लियर? बट डोमिनेंट में क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट में the gene will be present in a autosome chromosome, or if one gene is defect then person are suffer. Clear? It means affected, diseased if only one gene is affected. But in recessive type of disease, both gene can be required in defective manners. Right? ये हो गया autosomal recessive. अब बाकी रह जाता है सेक्स लिंक्ड, क्योंकि हमने टाइप स्टडी किए थे ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव. अब कौन सा हो जाएगा? सेक्स लिंक्ड.
recessive type. Very, very, very most important. Third one is sex-linked. X-linked भी आप बोल सकते हो, sex-linked recessive. Sex-linked recessive disorders, इसको आप बोल सकते हो X-linked also. क्या बोल सकते हो? X-linked, राइट? ये हो गया सेक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स. उसमें पहला है, दो यहाँ पे पढ़ना है. फर्स्ट है उसमें हीमोफीलिया. क्या है? हीमोफीलिया. दो डिसीज दिया हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है. हीमोफीलिया को अनदर नेम से आप बोल सकते हो ब्लेडर्स डिसीज. ब्लेडर्स डिसीज. सेकेंड, उसका हीमोफीलिया को ब्लेडर्स डिसीज बोल सकते हैं. आइदर एक और नेम भी है उसका रॉयल डिसीज. उसका एक और नेम क्या है? रॉयल डिसीज. क्लियर? रॉयल डिसीज, क्योंकि कई सारे राजा महाराजा में भी ये था, जिसका जो कैरियर है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. क्वीन विक्टोरिया ऑब्वियसली क्या रही है? कैरियर रही है. क्लियर? सेक्स-लिंक्ड रिसेसिव X-linked डिसऑर्डर से है. Sex-linked recessive disease which shows in transmission of from unaffected carrier female to some of the male progeny. Unaffected carrier से किसमें आता है? Male progeny. The affected individual clotting of blood is affected individual clotting of blood is affected. Clear? Blood clotting affect होता है. Due to this, a simple cut will show the non-stop bleeding. Clear? क्योंकि blood clotting होता नहीं है, थोड़ा सा भी कट लग जाए तो कैसा रहेगा? कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगा, राइट? तो जो भी डिफेक्टिव पर्सन होगा उसमें कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगा और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड की वजह से पर्सन क्या हो जाता है? डाई. तो हीमोफीलिया में क्या जरूरत पड़ता है? कंटिन्यूसली ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड कैन बी रिक्वायर्ड. देखो थैलेसेमिया भी मैं बता रहा था, और सेकंड हीमोफीलिया, क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉटिंग होता नहीं है. तो क्लॉटिंग फैक्टर है टोटल 13 फैक्टर्स है. कितने फैक्टर्स है? टोटल 13 फैक्टर्स अवेलेबल है, राइट? इसका एक और नेम है, देखो ब्लेडर्स डिसीज, रॉयल डिसीज, और एक और नेम वहां पे मिल गया. इसका नेम जो है और हो जाएगा क्रिस्टमस डिसीज. बहुत सारे नाम हो गए. क्या होता है उसमें? अफेक्टेड इंडिविजुअल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, सिंपल कट कैन, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, राइट? तो ब्लड क्लॉट का इफेक्ट होता है. रेडी? ब्लड क्लॉटिंग में इफेक्ट होगा. नेक्स्ट, अगर आपको मालूम है यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक और आएगा, कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट है. किसकी रिक्वायरमेंट है? कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट है. इफ कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम ए ब्लड कैन नॉट क्लॉट. क्लियर? ब्लड क्लॉटिंग के लिए किसकी जरूरत है? कैल्शियम. कैल्शियम रिलीज हो गया तो ब्लड क्लॉट होगा नहीं. सेकेंड, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबल वहां पे जरूरी है? तो फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल. देयर इज द 1 to 13 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. आगे आपने स्टडी किया होगा 11th क्लास में. देयर इज द 1 to 13 फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड सिंपल कैल्शियम. कैल्शियम रिलीज हो जाएगा तभी भी क्लॉट नहीं होगा, और 13 फैक्टर नहीं है तभी भी क्लॉट नहीं होगा. तो उसमें मेनली दो टाइप्स के हीमोफीलिया है. हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी. हीमोफीलिया ए में 8 नंबर ऑफ फैक्टर और बी में
9 नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होगा, इफेक्ट होगा। 1 to 13 में से 8 नंबर का अगर डिफेक्ट है फैक्टर में तो हेमोफीलिया ए, और 13 में 9 में है, अब टू 13 में 9 फैक्टर में अगर डिफेक्ट है तो हेमोफीलिया बी। क्लियर? ए और बी वो फैक्टर है तो उसके बेस से उसका टाइप हो गया। तो दो टाइप के हेमोफीलिया, हेमोफीलिया ए एंड बी। हेमोफीलिया ए है तो फैक्टर नंबर 8 इज अफेक्टेड, हेमोफीलिया बी है तो फैक्टर नंबर 9 इज अफेक्टेड। ड्यू टू deficiency of this factor, blood clot cannot be occurs. Ready? तो ब्लड क्लॉट होगा नहीं। एक्स लिंक पे उसका जीन अवेलेबल है, एक्स क्रोमोसोम पे कहां पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पे उसमें ये प्रेजेंट है। राइट? फीमेल में 2 एक्स होते हैं और मेल में एक्स है। और कौन से टाइप का बताया, रिसेसिव। तो फीमेल वो क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है, क्योंकि देखो 2 एक्स है वो फीमेल में प्रेजेंट है और मेल है उसमें क्या है, ओनली एक्स। और दूसरा वाई, उसका जीन वाई पे प्रेजेंट है नहीं, एक्स पे प्रेजेंट है। एक्स पे प्रेजेंट है तो एक्स पे होगा, दूसरा नॉर्मल होगा। रेडी? तो उसका जो क्रॉस हमें बनाना है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। अगर मान लो कोई एक एक्स पे उसका जीन है और वो डिफेक्ट है, क्लियर? एक नॉर्मल हो गया और एक हो गया डिफेक्टिव, ये है डिफेक्टिव जीन। स्मॉल एच है वो डिफेक्टिव, क्योंकि रिसेसिव है तो स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एच है वो है नॉर्मल। तो ये जो पर्सन फीमेल हो कैसे होगी, कैरियर। क्लियर? अगर दोनों एच है वो एच है तो ये कैसे हो जाएगा, नॉर्मल। ये क्या है, कैरियर ऑफ दिस डिसीज, कैरियर, और ये नॉर्मल। एक्स स्मॉल एच दोनों है तो क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड, मतलब हीमोफिलिक हो जाएगा। रेडी? तो ये फीमेल में 3 पॉसिबिलिटी है। फॉर मेल के लिए 2 ही पॉसिबल है, एक ही एक्स है, इधर वो नॉर्मल और इधर वो कैसे हो जाएगा, अफेक्टेड। तो ये हो गया नॉर्मल मेल और नॉर्मल अफेक्टेड मेल। रेडी? नॉर्मल मेल एंड अफेक्टेड मेल। और यहाँ पे फीमेल में 3, कैरियर, नॉर्मल एंड अफेक्टेड। तो such type of disease will be transferred in a male from a carrier female। कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल कैरियर से। अफेक्टेड फीमेल वो ज्यादा लॉन्ग, दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये तो जनरली एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। कौन, हीमोफिलिक, देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस। राइट? तो यहाँ पे हीमोफिलिक जो पर्सन है उसमें क्या है, दोनों अगर कैसे है, रिसेसिव जीन है, मतलब अफेक्टेड हो गया, तो इन सच पर्सन द ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस कैन बी अकर्स व्हाइल एन सिंपल कट। सिंपल कट लगेगा तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा। क्लियर? तो 2 है, एक नॉर्मल और एक कैसा हो जाएगा, कैरियर। नॉर्मल तो नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करेंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नॉर्मल जीन है। बट कैरियर कैन ट्रांसफर देयर जीन इनटू मेल एंड मेल विल बी अफेक्टेड। तो उसके हम क्रॉस बनाते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटी हो गए। क्लियर? इसको रॉयल डिसीज क्यों बोला है, क्योंकि ज्यादातर जो रॉयल पर्सन, राजा महाराजाओं में डिसीज 1-2 में पाई गई थी, उसके बेस से नेम दिया हुआ, ज्यादातर उसमें होता है, ऐसा नहीं है। और कॉन्सेजेनियस क्रॉस हमने बताया था वहां पे, मैरिज, मतलब मैरिज बिटवीन ए रिलेटिव्स। क्लियर? तो एक फैमिली में है और उसी के दूसरे मेंबर के साथ क्रॉस किया गया वहां पे मैरिज, तो उसमें डिसीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल, एक ले लिया, ये है कंडीशन, नॉर्मल कैरियर फीमेल, एक एक्स और एक स्मॉल एक्स, कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल। तो क्या हो जाएगा, इसके गैमेट एक्स और एक्स, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स एच और यहाँ पे हो गया वाई। रेडी? एक्स दोनों के दोनों कैपिटल, एक्स एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक्स कैपिटल एच और वाई, एक्स स्मॉल एच एंड वाई। देखो ये क्या है, यहाँ पे फीमेल और ये मेल। मेल कैसा था,
नॉर्मल, और फीमेल कैरियर। तो कैरियर फीमेल दे ट्रांसफर द जीन इनटू मेल। तो यहाँ पे क्या हो गया, एच एच कैपिटल एच नॉर्मल फीमेल, फिर एच कैपिटल एच और एच स्मॉल एच कैरियर फीमेल। तो फीमेल जनरली कैरियर होती है, इधर नॉर्मल होते। डिसीज तो तभी होता है जब मेल में डिसीज है। और एच कैपिटल एच और वाई, तो नॉर्मल मेल, और एच स्मॉल एच एंड वाई अफेक्टेड मेल। तो मेल में कहां से ट्रांसफर हुआ, फीमेल से, बिकॉज एच विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम मदर ओनली इनटू देयर सन। सन में एक्स कहां से ट्रांसफर होता है, मदर से, और वाई फ्रॉम फादर ओनली। तो वाई लिंक तो जीन है ही नहीं। तो जो ज्यादातर सन में आइदर मेल में डिसीज कहां से ट्रांसफर होता है, कैरियर फीमेल से। क्लियर। तो ये से डिसीज में ज्यादातर कैरियर कौन होता है, फीमेल। मेल इज only or two type, normal or either affected, but such type of disease, in such type of disease female is normal, carrier or affected। एक और क्रॉस लेते हैं इसके रिलेटेड। ये इसमें जैसे लिया था एक कैरियर फीमेल और अफेक्टेड मेल, तो ये क्या हो गया, कैरियर। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल मेल, यहाँ पे कैरियर फीमेल, यहाँ पे एक्स स्मॉल एच अफेक्टेड फीमेल, और एक्स स्मॉल एच और वाई अफेक्टेड मेल। देखो मेल भी अफेक्टेड हो गया, फीमेल भी अफेक्टेड हो गए। जब कब कौन से टाइप पे लिया, मेल जो है वो कैसा है, अफेक्टेड, और फीमेल है वो है कैरियर। क्लियर। तो फीमेल कैरियर और मेल अफेक्टेड, तब जाके ओनली क्या हो सकता है, अफेक्टेड फीमेल हो सकती है, नहीं तो फीमेल कभी अफेक्टेड हो सकते हैं, बिकॉज वन एक्स कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। क्लियर। और वन फ्रॉम द मदर। तो दो एक्स चाहिए, और दोनों डिफेक्टिव कब होंगे, जब एक कैरियर और एक क्या है, अफेक्टेड है। राइट। तो ये हो गया उसके रिलेटेड क्रॉस। क्लियर। तो इसका ध्यान क्या रखना है, जो भी अफेक्टेड कैरियर है नॉर्मल मेल हो जाएंगे, तब सन है वो कैसे हो सकता है, इमोफिलिक हो सकता है। क्लियर। और ये डिसीज ज्यादातर कैसे कॉन्सेजिनियस मतलब क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज से ज्यादा स्प्रेड होती है। ऐसे टाइप के डिसीज केस में, ऐसे जो फैमिली जिसमें क्या होता है, क्लोज रिलेटिव्स, मतलब कोई फैमिली के पेडिग्री में ऑलरेडी क्या है, डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है। राइट। तो डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है और उसका अगर मैरिज हो गया उसकी फैमिली के साथ, क्लियर, तो वो ऐसे टाइप के जीन क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेट होंगे और तब जाके क्या हो सकता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है। राइट। ये हो गया हेमोफीलिया। अब लास्ट डिसीज इसका बाकी है, कौन सा डिसीज हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज में दूसरा है सेकेंड कलर ब्लाइंडनेस। ये भी कौन सा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। affected individual cannot distinguish red and green color. Clear? Are located on the X chromosome. Their alleles are absent from Y. Y में ये होता नहीं है. This character is common in men but rare in women. Clear? Color blindness है जनरली किसमें होता है? Common in men and but rare in female. Clear? Female में rare केस में होता है, men में ज्यादा होता कलर ब्लाइंडनेस. इसमें
क्रॉस अगर लिया जाए कलर ब्लाइंडनेस के रिलेटेड, देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने ये सर्कल बनाया, क्लियर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिफरेंट कलर जो यूज करेंगे। कौन कौन सा है यहाँ पे? रेड एंड ग्रीन। तो यहाँ पे पैसिफिक में हमने मान लो कि रेड पैटर्न बनाया, रेडी। उसके साथ 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 में कितने लोगों को इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? पैसिफिक नंबर पे दिखाई दे रहा है सर्कल में, क्लियर। जितने लोगों को पैसिफिक नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो कलर ब्लाइंड है नहीं, क्लियर। क्योंकि पर्सन यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्या कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, क्लियर। ग्रीन कलर नहीं था बट यहाँ पे हमने रेड कलर लिया हुआ है, तो रेड कलर का कोई नंबर किसी को दिखाई दे रहा है इसमें, तो नंबर हो जाएगा कौन सा? 71, क्लियर। अगर यहाँ पे 71 सबको दिखाई दे रहा है तो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये हो गया 71। तो ये पूरे पैटर्न में अगर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो रेड और ग्रीन कलर को तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, क्लियर। और नहीं कर सकते हो तो कलर ब्लाइंड से उसका जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, राइट। अब वही सेम रिसेसिव ये जीन हो गया, क्लियर। रिसेसिव जीन है कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस का। उसके लिए हमें क्रॉस बनाना है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्रॉस बनाएंगे। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच कैपिटल सी और स्मॉल सी। जैसे हीमोफीलिया में एच से रिप्रेजेंट किया था, हीमोफीलिया के लिए एच एच और एच एच नॉर्मल, एच एच और एच स्मॉल एच कैरियर और एच स्मॉल एच अफेक्ट। इसी तरह यहाँ पे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी और कैपिटल सी, तो हो जाएगा नॉर्मल फीमेल, एच कैपिटल सी एच स्मॉल सी हो जाएगा कैरियर फीमेल, और एच स्मॉल सी एच स्मॉल सी दोनों जीन डिफेक्टिव है तो दिस इज आइदर अफेक्टेड फीमेल, रेडी। अब इसी तरह मेल में लिया जाए, मेल के लिए तो एक्स और वाई एक ही एक्स प्रेजेंट है, अगर कैपिटल है तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल मेल, और एक्स और स्मॉल सी वाई है तब यह हो जाएगा अफेक्टेड मेल, रेडी। इसमें भी चांसेस कलर ब्लाइंडनेस के लिए ज्यादातर कैरियर कौन हो सकती है? फीमेल। फीमेल इंस्टेंट जनरली कैरियर ऑफ दिस डिसीज, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, उसमें हु इज द कैरियर? फीमेल इज ओनली द कैरियर एंड दे इज द रिस्पांसिबल टू ट्रांसफर द डिसीज इन देयर नेक्स्ट जनरेशन इनटू द मेल ओनली। मेल के लिए कौन रिस्पांसिबल है? फीमेल, राइट। तो अब उसमें क्रॉस बनाते हैं। इफ द मेक द क्रॉस बिटवीन कैरियर फीमेल विथ नॉर्मल मेल, तो नॉर्मल वे मेल वहां पे क्या आ जाएगा? कैपिटल सी, तो एक्स कैपिटल सी नॉर्मल फीमेल, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी कैरियर फीमेल, यहाँ पे नॉर्मल फीमेल, यहाँ पे एक्स कैपिटल सी और वाई नॉर्मल मेल और एक्स स्मॉल सी और वाई अफेक्टेड मेल। तो मेल में डिसीज किससे हुआ? कैरियर फीमेल से हो गया ना, यहाँ पे ये फीमेल है और ये है मेल, तो मेल से तो नॉर्मल जीन आया था, वाई आया था, तो डिफेक्टिव जीन कहां से ट्रांसफर हुआ? फ्रॉम द फीमेल। इन मेल द डिसीज ऑफ X-linked gene will be transferred from female only, not from the male. In X-linked recessive disease में the disease gene will be transferred from female, not from a male. अगर दोनों कलर ब्लाइंड लिए, how the possibility to develop the color blind female? तो फीमेल सभी कलर ब्लाइंड हो सकते हैं whenever the cross with carrier female और यहाँ पे affected male के साथ carrier female, तो X कैपिटल सी स्मॉल सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैरियर फीमेल, एक्स स्मॉल सी
और दोनों स्मॉल सी डिफेक्टिव जीन आ गया, तो अफेक्टेड क्या आ जाएगा यहाँ पे, फीमेल। अब एक कैपिटल सी और वाई नॉर्मल मेल, एक स्मॉल सी वाई अफेक्टेड मेल, राइट। तो अफेक्टेड मेल इसमें आ गया। तो देखो अफेक्टेड मेल, यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल, फीमेल अफेक्टेड कब हो सकते हैं, व्हेनेवर द क्रॉस्ड विद अफेक्टेड मेल विद कैरियर फीमेल। फिर दोनों एक से, वन कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, अदर एक कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। तो दोनों जीन जब कैसे है, डिफेक्टिव है, तो ही इसमें डिसीज हो सकता है। रेडी। अगर मान लो ये समझ में आ गया क्रॉस, क्लियर। अब दोनों नॉर्मल है तो सभी कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, क्लियर। और मान लो फीमेल कैरियर है, सॉरी फीमेल है वो अफेक्टेड है, जैसे फीमेल अफेक्टेड और मेल अफेक्टेड, तब क्या हो जाएगा, सभी के सभी पर्सन है वो कैसे हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड हो जाएंगे ना। ये हो गया कैसे, अफेक्टेड, कैरियर के प्लेस पे अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड मेल, ऑल चाइल्ड विल बी अफेक्टेड कलर। रेडी। अब मैं आपको एक स्टोरी टाइप जैसे बताता हूं, जैसे कोई एक फैमिली में मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स, मदर एंड फादर। मदर जो है वो कैसे है वहां पे, नॉर्मल फीमेल, और अफेक्टेड मेल है, मतलब नॉर्मल फीमेल तो एक दोनों कैपिटल एस आ गया, सॉरी सी है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, और अफेक्टेड के लिए एक स्मॉल सी और ये हो गया वाई। तो आप क्रॉस बनाएंगे तो एक में आ जाएगा यहाँ पे फीमेल एस दोनों कैपिटल सी, और मेल के लिए हो जाएगा एक्स स्मॉल सी और वाई। तो एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, क्लियर। एक्स यहाँ पे कैपिटल सी और वाई, एक्स कैपिटल सी और वाई, दोनों मेल है वो कैसे हो गए, नॉर्मल मेल, बट फीमेल कैसे हो गया, कैरियर, फीमेल दोनों कैरियर, बिकॉज वन एक्स कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और एक्स एन ए डिफेक्टिव। तो फीमेल में दोनों कैसे हो गए, कैरियर, और मेल में ओनली वाई कैन बी इनहेरिटेड। तो जब ऐसे केस में एक मानते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड, राइट, मेरे फ्रेंड को कलर ब्लाइंडनेस है और उसकी जो वाइफ है उसको कोई कलर ब्लाइंड है नहीं, क्लियर। तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस है और उसके ओनली क्या है, 2 सन है, क्या है, ओनली 2 सन है, क्लियर। 2 सन अवेलेबल है ये केस में, उसके 2 सन अवेलेबल है, एक नॉर्मल फीमेल और 1 अफेक्टेड मेल, उसके 2 सन अवेलेबल है। तो मैं आप उसको ये बता रहा हूं, उसके नेक्स्ट जनरेशन में अब कलर ब्लाइंड होने के कोई चांसेस है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 मान लो ओनली मेल है, क्या है, 2 मेल है। तो एक से वो कहां से आएगा, यहाँ से, और वो नॉर्मल है वाई वहां से आ जाएगा, तो उसका कलर ब्लाइंडनेस जी ने कहीं ट्रांसफर हुआ नहीं। तो 2 चाइल्ड है और दोनों कैसे है, नॉर्मल, क्योंकि यार दोनों कैसे है, मेल है। अब इसके नेक्स्ट प्रोजिनी जिससे भी शायद होंगे, अगर वो नॉर्मल है तो उसके प्रोजिनी में क्या नहीं हो सकता, कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता है, वो जीन वहां पे रुक गया, क्योंकि वो एक्स लिंक्ड है और एक्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड इनटू देयर सन, ओनली वाई इज इनहेरिटेड इनटू सन फ्रॉम द फादर, राइट। तो ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर कैन नॉट बी विजुअलाइज, आइडेंटिफाइड, स्पेसिफिक, क्लियर। जैसे मान लो कि कोई घर पे गेस्ट आ गए और कलर ब्लाइंडनेस पर्सन है और ग्रीन कलर का शर्ट पहना है, आप गए किसी घर पे, आपने ग्रीन कलर का शर्ट पहना है और वो पर्सन, सामने वाला पर्सन बता रहा है, वाह बहुत बढ़िया रेड कलर का शर्ट वो पहना आपने, और आपने पहना हुआ है ग्रीन कलर, मतलब पर्सन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड कैसे भी रेड और ग्रीन कलर, तो पर्सन को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। रेडी। तो ये डिसीज सभी कैसे हो गए, एक्स लिंक डिसीज हो गए। अभी तक हमने जो स्टडी किया वो सभी डिसीज कौन सा है, सबसे पहले हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन, तो हमने लिया था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हमने स्टडी किया कौन सा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव स्टडी किया। रेडी। डोमिनेंट है एग्जांपल में, क्लियर।
अब आपको पढ़ना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या पढ़ना है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ना है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से उसमें 3 होमली दिया हुआ है, छोटा क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। रेडी? यहाँ तक आपको ये क्लियर करना है सभी। क्लियर? अब बाकी रह जाता बिल्कुल स्मॉलर टॉपिक, दैट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइंट-हिल्टर सिंड्रोम, जो मैं आपको लिख के अच्छी तरह से समझाऊंगा। रेडी? उसका नोट्स यहाँ तक सबको प्रिपेयर करके रखना है, सभी टाइप्स के कोर्स बनाना है, एमसीक्यू का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है जेनेटिक्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 12th के लिए। क्लियर? और नीट में से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेडी? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास होगा किसके लिए? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, चलिए।